Hello everyone, Namaskar, Jai Jagannath. Welcome to your UGC Net Commerce channel, Sarat Education. I am Dr. Sarat Kumar Samantray, and through this channel, we will understand the important concepts of UGC Net Commerce and previous year questions, and exam-oriented topics in a very simple and a clear ways. And this video is the fifth video of your special series based on and from 2006 to 2026. Okay, 2006 to 26 is the fifth video, and it's the paper of June 2008 commerce paper 2. And let's start. It's in this question, in this PDF there is a 50 questions we will be cover that all are the objective questions, and there is also one passage carrying of 5 questions. Okay, let's start. Now let your first question is the choice of distribution channel is affected by the choice of distribution is the your concept is market consideration, product consideration, then middleman consideration, all of this. Okay, your correct answer is here all of this, because when we are going to distribute a one product of our business, one product of our business, that is it needs to distribution in market, product should be distributed, and their middleman be also needed to the distribute our product. Then the choice of distribution channel is a crucial decision in making and is influenced by the multiple factors, जो कि हमारा वहाँ पर हमको मार्केट भी चाहिए, प्रोडक्ट भी चाहिए और मिडिलमैन भी चाहिए. मार्केट मीन्स कस्टमर्स. Market means customers, number of buyers, number of or habits of buyer. Then geographical consideration. Then geographical consideration also needed for the in the market. Then I like example, mass market required wider distribution channels. So next to your option, product consideration means nature of product. Product consideration means nature of product, like perishable gooड्स है, और ड्यूरेबल गुड्स है, और बल्कि माल है, और टेक्निकल कोई भी एक प्रोडक्ट हो, कोई भी टाइप ऑफ प्रोडक्ट हो, वो भी उस सबको सेल करने के लिए हमको क्या चाहिए, मार्केट चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, मिडिलमैन चाहिए, ऑल ऑफ दीजिए चाहिए. ओके, देन प्रोडक्ट मीन्स और भी हो सकता है, जैसे कि यूनिट वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट हो सकता है, स्टैंडर्डाइज्ड कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है. लाइक एग्जांपल, पेरिशेबल गुड्स नीड वेरी शॉर्टर चैनल. पेरिशेबल गुड्स नीड्स वेरी शॉर्टर चैनल टू सेल टू द फाइनल कंज्यूमर. Then the middleman can contribute their the valuable consideration, like available of intermediaries, cost and efficiency of a middleman, service provide by the intermediaries. Okay, these are the various activities of a middleman. And if there is example, like if efficient distributor, there is a efficient distributor in the market, can exist, farm may be use indirect channel. If farm may be use indirect channel. So your correct answer is all of the above. Okay, next question, who is the custodian of a monetary reserve in India? Here it's a very simple question. Monetary custodian means your correct answer is RBI. Your correct answer is RBI, not SBI, not SIDBI, not NABARD. SBI is the State Bank of India, and it's a commercial bank. NABARD is a rural and agricultural development bank, like its full form is National Bank for the Agriculture and Rural Development. And then SIDBI is focused to the MSME, and it's the Small Industrial Development Bank of India. It's only financing to the new startup holders, new MSE holders. Okay, or your answer is RBI, because RBI role of the RBI is the custodian to the reserve, cash reserve, custodian to the foreign exchange, custodian or controller of a monetary policy, and it regulate the money supply, credit control of our economy. RBI manages India's forex reserve to maintain stability in currency, and commercial banks are required to keep portion of the reserve with RBI. So RBI, SBI is not correct answer, because
RBI or SBI needs to portion of their reserve with the RBI to maintain like CRR, like CRR. Okay, and the RBI is the Central Bank of India. You know that हमें हम लोग उसको जानते हैं, हमको RBI एक सेंट्रल बैंक है हमारा इंडिया का. देन ये मेंटेन क्या करता है, ये प्राइमरी फंक्शन क्या है, मेंटेन कंट्रीज मॉनेटरी रिजर्व्स लाइक गोल्ड रिजर्व, कैश रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. दीज आर द various functions of RBI. So your correct answer is RBI. Then next question, who is the fiscal agent and advisor to government? Fiscal agent and advisor of the government in monetary and financial matters in India. So your same answer is also, that is क्या होगा, दैट इज RBI होगा. ओके, दैट इज योर करेक्ट आंसर इज RBI. इट्स ऑल्सो मॉनिटरी कंसिडरेशन custodian and is also fiscal agent and advisor to the government in monetary and financial matters. Okay, ICC is the Industrial Credit and Investment Corporation of India, is a private sector bank or financial institution. IDBI is the Development Financial Bank, Industrial Development Bank of India, and SBI is the commercial bank. So your correct answer is RBI. So RBI, then its key functions is fiscal agent to the government, advisor to the government, banker to the government. Okay, these are the functions of RBI to the government. The next question, during the depression, it is advisable to lower bank rate and purchase security in the market, increase bank rate and purchase securities in the open market, decrease bank rate and sell securities in the open market, increase bank rate and sell securities in the open market. Okay, here during a period of depression, means economical slowdown. ओके, डिप्रेशन का मीनिंग क्या होता है, इकोनॉमिकल स्लोडाउन होता है. जब सेंट्रल बैंक का काम क्या रहेगा, जब इकोनॉमी स्लो डाउन हो गया वहाँ पर क्या करेगा, वो एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी यूज़ करेगा. क्या यूज़ करेगा, एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी वो यूज़ करेगा. एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी यूज़ करेगा तो क्या करेगा, वो जो मार्केट को वो कैसे भी करके जो उसके पास जो पैसा पड़ा हुआ है उसको मार्केट में छोड़ेगा. वो कैसे छोड़ेगा तो लोगों के पास तो पैसा नहीं है, वो क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेगा ना, RBI उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको लो कर देगा. तो बैंक, जितने भी बैंक होंगे वहाँ पर क्या करेंगे, RBI से लोन ले जाएंगे, लोन लेके और मनी लेके लो इंटरेस्ट में लेके मार्केट में शेयर करेंगे एज ए लोन, आज फॉर द लाइक इन्वेस्टमेंट के जैसा वो मार्केट में छोड़ देंगे. तो ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ डिप्रेशन, economic slowdown, the central bank RBI follows the expansionary monetary policy to stimulate economic activity. So your correct answer is here 1, lower bank rate and purchase securities in the market. वो क्या करेगा, मार्केट में भी जितने भी सिक्योरिटीज होगा सबको परचेज करेगा तो क्या होगा, RBI के पास सिक्योरिटी जो कि पेपर करेंसी होगा वो चला जाएगा और मार्केट में क्या आ जाएगा, नोट्स आ जाएगा, जो कि बैंक नोट्स होगा जो कि लोग उसको लेके वेरियस इन्वेस्टमेंट करेंगे, वहाँ पर वो इनकम करेंगे तो हमारा जो स्लो डाउन हो गया था वो ग्रोथ में आएगा, तो वहाँ पर हमारा ग्रोथ शुरू हो जाएगा. तो लोअरिंग बैंक रेट मीन्स reduce the cost of borrowing for commercial bank in the turn reduce lending rates, encourage businessmen and customers to borrow and investment. Then purchase of security means in open market RBI buys government securities to inject liquidity in the market by the through of money supply to the banks, to the customers, to the individuals, every individuals of our country into the economy. The increased cash available with bank is more lending to the businessmen. So in depression demand is low and unemployment is high. In depression demand is low, unemployment is high. Is increasing money supply and reducing interest rate help boost investment and competition. ओके, कंजम्पशन को हमको बूस्ट करना है, इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करना है, तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको लोअर करना पड़ेगा और मार्केट में जितने भी सिक्योरिटीज है लोगों के पास और बैंक के पास वहाँ पर क्या करेगा, RBI परचेज कर लेगा, तो मनी सप्लाई हो जाएगा, ऑटोमेटिकली मनी सप्लाई हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
Your next question is nationalization of bank aimed at all of the following except which is not considered in the nationalization of a bank: removal of control by few, provision for control by few, provision of adequate credit for the agriculture, small industry and export units, encouragement of a new class of entrepreneur. क्या होगा, क्या होना चाहिए आपका यहाँ पर आंसर? आपका आंसर यहाँ पर होना चाहिए, आपका आंसर है प्रोविजन फॉर कंट्रोल बाय फ्यू, प्रोविजन फॉर कंट्रोल बाय फ्यू, इससे आपका आंसर होना चाहिए। क्या हो, क्यों होगा? द नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, द नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक मीन्स नोटेबल, इट्स नोटेबल बाय द ड्यूरिंग द बैंक नेशनलाइजेशन इन इंडिया 1969 में पहला हुआ था हमारा, वो दूसरा हुआ था 1980 में हुआ था, और उसके बाद अभी कोई नेशनलाइजेशन नहीं हुआ है, बट जो मर्जिंग बहुत सारा हुआ है, नहीं कि मर्जिंग बहुत सारा हुआ था। एंड इट एम्ड टू बॉर्डरिंग एक्सेस बैंकिंग एंड रिड्यूस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्यू इकोनॉमिक पावर्स। ना ये ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए आपका? रिमूवल ऑफ कंट्रोल होना चाहिए आपका। ये क्या होगा ना, ये नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट इसलिए ये नहीं होना चाहिए आपका, रिमूवल ऑफ कंट्रोल होना चाहिए, और जो एनकरेजमेंट होना चाहिए, न्यू क्लास ऑफ एंटरप्रेन्योर को एनकरेजमेंट करना चाहिए, प्रोविजन फॉर एडिक्वेट क्रेडिट मार्केट में देना चाहिए, एग्रीकल्चर को देना चाहिए, स्मॉल इंडस्ट्री को और एक्सपोर्ट यूनिट, जितने भी बिजनेस यूनिट्स है, एग्रीकल्चर हो, स्मॉल इंडस्ट्री हो, एक्सपोर्ट, सबको क्या करना है, अपॉर्चुनिटी सबको प्रोवाइड करना चाहिए। सो योर करेक्ट आंसर ये क्या हो जाएगा, जो कि कंसिडर नहीं किया जाएगा, जो कि provision of a control of a fuse. Okay, your next question: the portion of total deposit of a commercial bank which it has to keep with the RBI in the form of cash reserve is termed as, ओके, टर्म राज आपका क्या आंसर होना चाहिए? CRR होना चाहिए, कैश रिजर्व रेशियो आपका आंसर होना चाहिए, क्योंकि द पर्सन ऑफ टोटल डिपॉजिट्स, द पर्सन ऑफ टोटल डिपॉजिट्स दैट कमर्शियल बैंक मीन्स SBI, लाइक SBI जो कमर्शियल बैंक, SBI क्या करेगा, उसके पास जो टोटल रिजर्व होगा, टोटल कैश होगा, उसमें से एक परसेंटेज क्या करेगा, वो RBI के साथ मेंटेन करेगा, द पर्सन ऑफ टोटल डिपॉजिट दैट ए कमर्शियल बैंक लाइक SBI मस्ट कीप विथ RBI इन द फॉर्म ऑफ कैश रिजर्व, इन द फॉर्म ऑफ कैश। सो इसको क्या बोलेंगे, कैश रिजर्व रेशियो ही बोलेंगे। तो कैश रिजर्व रेशियो का मीनिंग क्या है? कैश रिजर्व मीन्स इट इज ए मैंडेटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट्स टू एवरी कमर्शियल बैंक मस्ट कीप सर्टन परसेंटेज ऑफ देयर नेट डिमांड, क्या, NDTL मीन्स नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, जो जितना भी है वो आज कैश विथ RBI के साथ उनको लोगों को क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। दिस अमाउंट कैन नॉट बी यूज टू फॉर द लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट, ये जो परसेंटेज ऑफ अमाउंट होगा ना, वो क्या नहीं कर सकते, जो कि वो लेंडिंग नहीं दे सकते, किसको, पब्लिक को, कोई भी इन्वेस्टमेंट हो गया, कोई भी हो। और पर्पस क्या है, पर्पस CRR का पर्पस क्या होना चाहिए? कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई को कंट्रोल करेगा, इंश्योर करेगा, जो लिक्विडिटी एंड स्टेबिलिटी को इंश्योर करेगा, एंड मॉनिटरी टूल आज एक्ट है, मॉनिटरी टूल, इट्स ऑल्सो ए टूल ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी। देन SLR is the statutory liquidity ratio. SLR is the statutory liquidity ratio maintained banks themselves in the as a liquid assets. It's based on the liquid assets. It's based on the cash. Okay. Then bank rate means bank rate is a rate at which RBI lends to commercial bank. Bank rate is the rate at which RBI lends to the commercial bank. Repo rate means short term lending rate. Repo rate means short term lending rates which it's under represents the agreements and used to repurchase the agreements. Okay, your correct answer is CRR. Then next question: the emphasis of human resource management is development, punishment, promotion, demotion. क्या होना चाहिए आपका? ये मेन मोटो क्या होना चाहिए एचआरएम का मेन मोटो होना चाहिए डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय, डेवलपमेंट ऑफ valuable employees of the organization. The core emphasis of HRM is development of employee to enhance their skills and knowledge and overall performance and practical habits. And why development is needed? Because HRM focus on training and development programs. It encourages to skill enhancement and career growth. It aims to maximizing utilization of human potentials. It promotes job satisfaction and organizational effectiveness. These are the main motto of HRM. So your correct answer is development. Okay,
No, others are not correct. Punishment, HRM is not focused. Promotion also focused, but it is the last point. It's not important to the HRM. Demotion is also not a primary focus, and these are the not primary focus of punishment हो, promotion हो और demotion हो, ये दोनों कभी करेक्ट नहीं हो गए. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज शरत एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. एंड इट्स योर, it's not 2007, it's your 2008. 2008 is June paper 2. Okay. करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्पस ऑफ जॉब इवोल्यूशन इज, द पर्पस ऑफ अ जॉब, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमको, जॉब इवोल्यूशन करना पड़ेगा. क्या कैसे करेंगे? ट्रेनिंग से, प्रमोशन से, वेज फिक्सेशन से और ट्रांसफर से. क्या होना चाहिए आपका आंसर यहाँ पर? क्या होना चाहिए? वेज फिक्सेशन से आपका जॉब इवोल्यूशन हो सकता है. किसके पास कौन सी एम्प्लॉय को कितना जॉब, कितना क्या करे, वेज दे रहे हो, वो सबको पता होना चाहिए, उसको प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए. तो आपका क्या होना चाहिए? जॉब इवोल्यूशन इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस. Job evolution is a systematic process used in HRM to determine the relative worth of different jobs within an organization. जितने भी टाइप्स ऑफ जॉब्स है विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, सबको जानने के लिए, सबको कितने हमको पेमेंट करना है, कितने सारे सबको पेमेंट करना है, तो उसी हिसाब से हमको क्या करना पड़ेगा, कितने उनको पेमेंट दिए जा रहे हैं, वो सबको मेंटेन करना चाहिए. सो टू इंश्योर फेयर इक्विटेबल वेज स्ट्रक्चर, टू हेल्प फिक्सिंग सैलरीज एंड वेज बेस्ड, इट नीड्स जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी, स्किल रिक्वायर्ड, इफर्ट, वर्किंग कंडीशंस. ओके, दीज आर द important points to the purpose of job evolution. So your correct answer is wage fixation. Next question, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडक्शन क्या है? जो कि ट्रेनिंग है, ओरिएंटेशन है, इंट्रोडक्शन टू एम्प्लॉय है और सर्टिफिकेशन है. क्या होना चाहिए यहाँ पर? आपका आंसर होगा ओरिएंटेशन इज करेक्ट आंसर. क्योंकि इंडक्शन जो होता है ना, जब एम्प्लॉय पहली बार फर्स्ट टाइम जो एक ऑर्गेनाइजेशन को जो ज्वाइन करने के लिए आता है, वहाँ पर क्या होता है, उसको ओरिएंटेशन दिया जाता है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम किया जाता है. क्योंकि जो भी जॉब हो गया, जो भी एम्प्लॉयज हो गया, उनको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया जाएगा कंपनी के बारे में. द HRM, बिकॉज HRM or induction refers to the process of introducing a newly recruited employee to the organization. It's by through the induction, it allows to the known the new employee its policies, culture, rules, work environment, and organization structures. Okay, work cultures, these are the various points may be introduced to the new employees. So induction or orientation includes like a familiarize organizational structure उसको पता चलेगा, जॉब रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉलीग्स और सुपरवाइजर और रूल्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर, सब कुछ उनको पता चलेगा वहाँ से. ओके, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेबर प्रोडक्टिविटी मीन्स लेबर कब प्रोडक्टिव होगा? आउटपुट इज ग्रेटर देन इनपुट होना चाहिए, आउटपुट इज लेस देन इनपुट होना चाहिए, आउटपुट इज इक्वल टू द इनपुट होना चाहिए, आउटपुट इज नेगेटिव होना चाहिए. क्या होने से आपका लेबर आउटपुट प्रोडक्टिविटी ज़्यादा रहेगा? तो यहाँ पर आपका आंसर होना चाहिए आउटपुट इज ग्रेटर देन द इनपुट. आउटपुट इज ग्रेटर देन द इनपुट होना चाहिए. जितना भी इनपुट है उससे ज़्यादा जब आपको आउटपुट मिलेगा, तभी आपको क्या मिलेगा? लेबर अच्छा प्रोडक्टिविटी मिलेगा. मीन्स यहाँ पर आपको क्या हो सकता है, इसको कैसे कैलकुलेशन करेंगे? आपका आंसर होना चाहिए आउटपुट बाय लेबर यूनिट, लेबर इनपुट होना चाहिए. ओके, लेबर इनपुट, आउटपुट बाय लेबर यूनिट होगा तो आपको लेबर प्रोडक्टिविटी मिल जाएगा. लेबर प्रोडक्टिविटी refers to the efficiency of a labor in producing goods or services. Okay, next question is which of the following relate to the performance appraisal? परफॉर्मेंस मीन्स यहाँ पर आप क्या करें, जब लेबर का प्रोडक्टिविटी देख रहे हो, प्रोडक्टिविटी कैसे देखेंगे? जब उसका जो परफॉर्मेंस है उसको अप्रेजल हम करेंगे, परफॉर्मेंस अप्रेजल करेंगे तो लेबर का प्रोडक्टिविटी पता चलेगा और एम्प्लॉय का प्रोडक्टिविटी पता चलेगा. तो कैसे करेंगे? टास्क मेथड, प्राइस मेथड से, MBO से और लिंक मेथड से. यहाँ पर आपका आंसर होगा MBO मीन्स मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव. ओके,
Performance appraisal, the performance appraisal is the process of evaluating an employee and their contribution to the organization. और MBO का फीचर्स क्या होना चाहिए, क्या फीचर्स होगा, जैसे कि क्लियर सेटिंग गोल्स, मेजरेबल ऑब्जेक्टिव्स, जॉइंड बाय द मैनेजर्स, jointly to the with their employees, their colleagues, their subordinates and their seniors, and it predicts review of performance. It predicts the review of performance against various aims and goals of the organization. Then it focuses on result rather than activities. It focuses results rather than activities. It encourages participants and motivations. Okay, these are the, so your correct answer is your MBO is the performance appraisal, is a formula for performance appraisal. The next question is capital structure represents ratio between different forms of capital, all liabilities, all assets, asset and liabilities. Capital structure means ratio between different forms of capital. It's your correct answer, because capital structure refers to the proportion of a mix of different sources like long term sources plus short term sources. और लॉन्ग टर्म सोर्सेस में क्या आएगा, जो कि इक्विटी और डिवेंचर आएगा और प्रेफरेंस शेयर आएगा, बॉन्ड्स आएगा और आपका बैंक लोन्स आएगा. ये सब मिला के हमको क्या मिलेगा, कैपिटल ऑफ फॉर्म ऑफ कैपिटल मिलेगा और कैपिटल स्ट्रक्चर आपको मिलेगा. यहाँ पर ये सब आपका इंक्लूड हो जाएगा, जैसे डिवेंचर हो जाएगा, कोई भी लॉन्ग टर्म डेप्ट हो गया और ये सब इंक्लूड हो जाएगा. तो वहाँ से हमको क्या पता चलेगा, जैसे कि कैपिटल स्ट्रक्चर से आप क्या निकाल सकते हो, जैसे कि डेप्ट इक्विटी रेशियो आप निकाल सकते हो, और इक्विटी टू प्रेफरेंस शेयर रेशियो आप निकाल सकते हो. ये सब आप वहाँ से निकाल सकते हो. तो कि आपका आंसर होना चाहिए रेशियो बिटवीन द डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैपिटल इज अ कैपिटल स्ट्रक्चर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइटम क्लोजिंग इन्वेंटोरी इज शोन इन द बैलेंस शीट अंडर. बैलेंस शीट में कहाँ किसके अंडर वो आंसर शो होना चाहिए. इट्स ई वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल आंसर भी होना चाहिए. फिक्स्ड एसेट में रहेगा आपका क्लोजिंग स्टॉक, नहीं तो करंट एसेट में रहेगा, नहीं ये तो स्टॉक हो गया. करंट एसेट में रह सकता है बट यहाँ पर नहीं रहेगा. और करंट लायबिलिटी में रहेगा, नहीं ये आपका रहेगा ये आपका ओके ये आपका सॉरी करंट एसेट में रहेगा, क्योंकि क्लोजिंग इन्वेंटोरी इज ए करंट एसेट. ओके, क्लोजिंग इन्वेंटोरी इज ए करंट एसेट. और इसी यहाँ पर कहाँ पर प्रेजेंट होगा, यहाँ पर आपका प्रेजेंट होगा करंट एसेट्स में. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मीन्स ट्रेडिंग ऑन एरियर्स फंड्स, ट्रेडिंग ऑन बोरोड फंड्स, ट्रेडिंग ऑन फैमिली फंड्स, ट्रेडिंग ऑन फ्रेंड्स फंड. ये दोनों तो नहीं होगा. क्या होगा, आपका आंसर क्या होना चाहिए, ट्रेडिंग ऑन बोरोड फंड होना चाहिए. ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मीन्स ट्रेडिंग ऑन बोरोड फंड होना चाहिए. एरियर फंड तो नहीं, ये भी नहीं होगा, ये तीनों नहीं होगा. बोरोड फंड ऊपर एक क्वेश्चन पढ़ रहे थे जो कि क्या कहाँ था वो क्वेश्चन, ये रहा कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या क्या आएगा, आपका इक्विटी आएगा, डिवेंचर आएगा, प्रेफरेंस शेयर आएगा, बॉन्ड्स आएगा और बैंक लोन्स भी आएगा. ये सबको मिला के हमको ये सब बोरोड फंड हो गया. बोरोड फंड टू द बिजनेस हो गया. तो इसलिए ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मीन्स ट्रेडिंग ऑन दिज फैक्टर्स मीन्स ट्रेडिंग ऑन इक्विटी और रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ सोर्सेस लाइक डेप्ट. योर करेक्ट आंसर इज B, trading on borrowed fund. Okay, next question, marketing process involves time utility, place utility, right utility, all of these. Your correct answer क्या होना चाहिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज होगा. ओके, ऑल ऑफ दीज होगा, क्योंकि मार्केटिंग प्रोसेस फोकस ऑन डिलीवरिंग वैल्यू. ओके, delivering value to the customer, value to the business, value to the customer, value to the business by crediting different types of utility satisfy मिलेगा तो तभी जाकर हमका मार्केटिंग प्रोसेस अच्छा हो सकता है. जो कि ये कैसे इन्वॉल्व रहेगा, टाइम भी चाहिए, प्लेस भी चाहिए, राइट कस्टमर चाहिए जो कि आपका प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है. इसलिए आप ये तीनों करेक्ट हो जाएगा, तो ऑल ऑफ दीज आपका आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
व्हिच आर द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर कवर्ड ऑन द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आपका कौन सा एक्टिविटी एंगेज होगा? इन्वेंटरी, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ऑल ऑफ दिस। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ दिस, आपका आंसर होना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको क्या चाहिए? इन्वेंटरी चाहिए। इन्वेंटरी चाहिए क्योंकि मिनिमम ऑप्टिमम स्टॉक जो होगा, तो जो भी स्टॉक होगा सब उसको आप सेल करोगे, उसको पैकेजिंग होना चाहिए, उसका प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। तो एक्टिविटीज़ क्या होगा? कवर ऑन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में तीनों आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप कम्स फास्ट इन द सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका कौन सा प्रोसेस फास्ट आएगा? टेस्ट आएगा, एप्लीकेशन बैंक आएगा, स्क्रीनिंग आएगा, मेडिकल एग्जामिनेशन। आपका आंसर आना चाहिए स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग इज द फास्ट स्टेप ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस। स्क्रीनिंग कैसे आएगा? पहले आपका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बाद आप क्या करोगे? जितने भी आपके पास एप्लीकेशन आया होगा, ब्लैंक एप्लीकेशन आया होगा, सभी को आप रिव्यू करेंगे। रिव्यू करने से आपको बिजनेस में आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर जिस टाइप का एम्प्लॉय ज़रूरत है, और जिस टाइप का एक्सपीरियंस ज़रूरत है, और जिस टाइप का नॉलेज हो, स्किल्स हो, टेक्नोलॉजिकल हैबिचुअल हो, ये सब जो भी आपको चाहिए उसी हिसाब से आप क्या करोगे? सबको एनालाइज करोगे। एनालाइज करने के बाद स्क्रीनिंग करोगे। जो आपको ज़रूरत पड़ेगा, जो एप्लीकेंट ज़रूरत पड़ेगा उसको रखोगे, बाकी सबको रिजेक्ट कर दोगे। तो स्क्रीनिंग इन्वॉल्व्स preliminary check of application, and then it eliminate the unsuitable candidates, and based on the qualification, experience, and technological knowledges, and various other activities. Okay, your the first step is screening, then application blank, then test, then आपका आएगा मेडिकल एग्जामिनेशन आपका आएगा, और उससे पहले आपका आ जाएगा इंटरव्यू आ जाएगा। आपका पहले आएगा स्क्रीनिंग आएगा, देन एप्लीकेशन बैंक, तब टेस्ट आएगा, तब इंटरव्यू आएगा, लास्ट में आएगा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। फाइनली आप क्या करोगे? उसको ज्वाइनिंग लेटर दे दोगे। ओके, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएम थ्योरी इज परफेक्ट मार्केट सजेस्ट दैट डिवाइडेड डिविडेंड पेमेंट। Perfect market suggest that dividend payments has a positive impact on the value of the firm, has no impact on the value of the firm, positive impact, no impact, has a negative impact, has a negligence impact on the firm। आपका आंसर क्या होना चाहिए? यहाँ पर आप जो पढ़ोगे एमएम थ्योरी मीन्स मोदिग्लियानी मिलर डिविडेंड इररिलेवेंट थ्योरी। इट्स और का अदर नेम क्या है? इररिलेवेंट थ्योरी उसको भी हम बोलते हैं, जो कि मोदिग्लियानी मिलर अप्रोच भी उसको हम बोलते हैं। ओके, इट्स नॉट अफेक्टेड, क्या होगा? प्रपोज्ड बाय द और इज ओके, इट्स ए परफेक्ट कैपिटल मार्केट। आपको क्या चाहिए जब आप इस थ्योरी को यूज करोगे? उस टाइम पे आपको क्या चाहिए? परफेक्ट कैपिटल मार्केट चाहिए। क्या चाहिए? परफेक्ट कैपिटल मार्केट चाहिए। और डिविडेंड पॉलिसी डज नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द फार्म। योर डिविडेंड पॉलिसी कभी भी आपको आपका वैल्यू फार्म और शेयर होल्डर को जो भी वेल्थ है वहाँ पर कभी भी वो अफेक्ट नहीं करेगा। की अजम्पशन हमको क्या पता है एमएम थ्योरी का? परफेक्ट कैपिटल मार्केट होना चाहिए, परफेक्ट कैपिटल मार्केट होना चाहिए जहाँ पर नो टैक्स होगा, नो टैक्स, नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट, नो टैक्स, नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट, नो इन्फॉर्मेशन आसिमेट्री, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी जी फिक्स्ड, ये सब कुछ होना है, तभी जाकर आपका एमएम थ्योरी आप यूज़ कर सकते हो। क्या होना चाहिए? परफेक्ट कैपिटल मार्केट होना चाहिए जहाँ पर नो टैक्सेस, नो ट्रांजेक्शन फीस, नो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन आसिमेट्री, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फिक्स होना चाहिए, इन्वेस्टर सारे रेशनल होना चाहिए। ये सब होने से आपको क्या एमएम थ्योरी अप्लाई हो सकता है। कि कोर आइडिया क्या है? आप जब को एमएम थ्योरी पढ़ोगे वहाँ पर कोर आइडिया आपको क्या मिलेगा? फार्म्स पे डिविडेंड्स और रिटर्न अर्निंग्स शेयर होल्डर वेल्थ रिमेन्स सेम। शेयर होल्डर्स जो कि हो गए उनका जो वेल्थ होगा वो सेम ही रहेगा। इन्वेस्टर कैन क्रिएट देयर ओन डिविडेंड और दे कैन बी हार्मोनाइज देयर डिविडेंड्स। सो योर करेक्ट आंसर इज बी, has no impact on the value of the firm, okay, mm theory is the most important theory to the UGC NET examination, and it's a favorite question to them.
आप लोगों को ये जो एमएम थ्योरी का क्वेश्चन हो सभी ईयर में आपको देखने को लिए मिलेगा, तो इसलिए उसका डिटेल्स में हमने डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टू मैनेज टू मैनेज द फोर टू मैनेज इज द forecast and plan to manage the forecast and plan to organize, to command, to coordinate and to control. These are the word of okay, plan, organize, command, coordinate and control means POCC means POC3. POC3 is the best formula of Henry Fayol. Henry Fayol's formula is the POC3. Planning, organizing, coordinating, commanding, and controlling. These are the five functions of Henry Fayol. Okay. Or Kuhn O'Donnell. Kuhn O'Donnell is the modern management theory. The father. No, they are contribute their valuable contribution to the modern management. And Henry Fayol is the answer here. And Abdul Taylor is the father of scientific management. Then Peter Drucker is the known as father of modern management. Peter Drucker is known as a modern management, father of modern management. Okay, it is developed by MBO. MBO method is given by Peter Drucker. It focused to decentralization and knowledge workers. Henry Fayol and Abdul Taylor focused to the time study, motion study, standardization, scientific selection, training of workers, and efficient at the operational level of every workers. So it's also a correct important question. Then chunk sampling is known as quota sampling, convenience sampling, judgment sampling, cluster sampling. What is your correct answer here? Your correct answer is cluster sampling. Cluster sampling means cluster जो कि ग्रुप में डिवाइड होगा। कैसे डिवाइड होगा? ग्रुप पे डिवाइड होगा। क्योंकि ग्रुप क्या हो सकता है? जो कि आपका एज हो सकता है, जेंडर हो सकता है, आपका क्या हो सकता है, और कोई भी ग्रुप हो सकता है, जैसे क्लासेस हो गया। ओके, क्लासेस, स्कूल हो गया, विलेज हो गया, सिटीज़ हो गया। ऐसे ही हम क्या करेंगे, क्लस्टर वेरियस ग्रुप में डिवाइड कर देंगे, इसलिए हमको चंक बोलते हैं। टर्म चंक सैम्पलिंग मीन्स चंक सैम्पलिंग रेफर्स टू द सैम्पलिंग मेथड वेयर एंटायर ग्रुप और एंटायर चंक of unit is selected as a sample rather than selecting individual elements separately. This concept is closely related to cluster sampling, so its correct is cluster sampling. Okay, the next question, the first electronic computer system is developed in 1940s. Okay, your correct answer 1940s. Okay, next question, when management pays attention to more important areas looked after by lower level of management is known as when management pays attention to more important areas looked after by the lower level, that is MBO, management exception, unit of command, critical path method. आपका यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए? मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मैनेजमेंट के अंदर जो काम आता है वो करने के बाद जो एक्सेप्शन कुछ एक्स्ट्रा काम वो करते हैं। ओके, कुछ एक्स्ट्रा काम करते हैं, उसी को मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन हम बोलेंगे। तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा? टॉप मैनेजमेंट फोकस ओनली ऑन इम्पोर्टेंट एंड एक्सेप्शनल मैटर्स, वी नो दैट, व्हाइल रूटीन और लेस इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज आर हैंडल्ड बाय द लोअर मैनेजमेंट। हमको ये भी पता है जो कि लोएस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो लोअर मैनेजमेंट उसको करते हैं। द कॉन्सेप्ट management exception is based on do not involve themselves in every activity, instead the state standard and performance benchmark ये क्या करता है? सेट करेगा स्टैंडर्ड और परफॉर्मेंस बेंचमार्क सब सेट करेगा। अलाउ सबऑर्डिनेट टू हैंडल रूटीन टास्क, देन इन्वेस्टमेंट इन इंटरवाइन ओनली, देन द मैनेजमेंट इंटरवाइन only when the significant deviation are problems, and it helps in saving managerial time and efforts, and improving efficient and decision making, ensure top management concern that strategic issue. These are the various concern points of the management by exception. Okay, MBO
MBO is developed by Peter of Drucker. Its management objective, it's a specific goal jointly. It focus to the specific goals. Then unit of command is developed by the Henry Paul. It's a 14 principle points, one principle of a 14 principle of management. Then critical path method is a project method. It's a project management tool. Okay, it's a project management tool. Okay, your correct answer is MBO. Next question, policy making is an important part of the process of planning, coordinating, organizing, motivating. आपका यहाँ पर क्या आंसर होना चाहिए? आपका आंसर होना चाहिए प्लानिंग होना चाहिए. क्या होना चाहिए? प्लानिंग. पॉलिसी मेकिंग इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग. हम जब पॉलिसी प्लानिंग में जाते हैं वहाँ पर पॉलिसी ही मेकिंग करते हैं. ओके, पॉलिसी इज गाइडलाइंस और रूल्स. पॉलिसी क्या होता है? गाइडलाइंस और रूल्स होता है दैट हेल्प मैनेजर टू मेक कंसिस्टेंट डिसीजन ले सकता है, गाइड कर सकता है, एक्शन ले सकता है. और वो कहाँ पर करेगा? वहाँ पर जैसे कि ऑब्जेक्टिव को सेटिंग करना है और स्ट्रैटेजी डिसाइड करना, कोर्स ऑफ एक्शन मेंटेन करना, पॉलिसी फॉर्मुलेशन करना, प्रोसीजर फॉर्मुलेशन एंड रूल्स को मेंटेन करना. ये सब कहाँ पर आ जाएगा? आपका प्लानिंग में आ जाएगा. Okay, so policy provides framework for a decision making. It best to the decision. Your correct answer is planning. Then other, coordinating is involves harmonizing activities, and it helps it maintain the connection between the departments, not farming policies. It not based on the policies. Organizing, it deals with the arranging resources and assigning duty to the employees or workers of an organization. It's not a policy formulation. Then motivating means, or motivation is the focusing to the encouraging employees. Okay, encouraging employees. So it's not correct. It's not correct answer. It's focused to the employees. It's focused to the relation between employees. Organizing, it's a focus to the resources and the duties. Okay, next question, which of the following management function are closely related? Planning, organizing, staffing, controlling, planning, controlling. Planning and controlling is the closely related functions. Your correct answer is planning and organizing. Planning first is the process of making of a policy. Then controlling means how to control the policies. So planning sets objective and standards. Control ensures that actual performance and match their standards. Without control, planning cannot be possible. Planning cannot be effective. Okay, so control is often called the reverse or follow back to the planning. Okay, next question, that is 25. It's your last question of this video. Grapevine is a term used in the relation to formal, informal, both formal and informal. This term is not used in the relation to the communication. ये तो correct नहीं है. It's formal. Grapevine means informal. Sorry, it's your correct answer. Informal communication. Grapevine, the term grapevine refers to the informal communication network within an organization. It operates outside the official channel. And spread information quickly among the employees. It helps to spread information, various positive or negative information to the inside the employees. की फीचर्स क्या है उसका? अनऑफिशियल हो, ये इनफॉर्मल भी है, और पर्सनल कांटेक्ट जो भी है उसी माध्यम से ये क्या होता है, स्पीड होता है. ये बेस्ड ऑन द सोशल इंटरेक्शन. कैन बी फास्ट. इट्स वेरी फास्ट, नॉट फास्ट ओनली, वेरी फास्ट, बट समटाइम्स इनएक्यूरेट मोस्ट टाइम हुए. It reflect employees feelings, employees opinions and attitude. You can find these are the important point of a grapevine is the based on the employees feelings, employees opinion, employees attitude towards the organization. Often includes rumors, discussion and casual exchanges of employees. कोई फॉर्मल नहीं होगा. फॉर्मल क्योंकि फॉर्मल कम्युनिकेशन ये फॉलो थ्रू द प्रॉपर चैनल. एंड बहुत फॉर्मल नहीं होगा, बहुत फॉर्मल तो नहीं होगा, बहुत कैसे होगा. Okay, this is the final question of this video, and in next video we will be covered to from 26. It's 2008
जून। ओके, आप लोगों को रिक्वेस्ट है जो कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। और कोई भी सजेशन हो आपके पास हमको प्रोवाइड कीजिए, इस हिसाब से हम करेक्शन करेंगे। और आपको पीडीएफ चाहिए तो शरत एजुकेशन का चैनल है, एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर ज्वाइन कीजिए। आपको एसएसबी पीजीटी, एसएसबी उड़ीसा एसएससी पीजीटी का बुक चाहिए तो हम आप लोग हमको कांटेक्ट कर सकते हो। आपका नंबर है, मेरा नंबर है 9861223439। इट्स माय नंबर है, यहाँ पर मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो और मेरे को मैसेज व्हाट्सअप कर सकते हो, कोई भी कर आपको एसएसबी पीजीटी पीजीटी बुक्स चाहिए जहाँ पर आपको 10 यूनिट्स का यूनिट मिलेगा, जैसे कि आपका बिजनेस एनवायरनमेंट हो गया और अकाउंटिंग हो गया, और आपको और भी बहुत सारा मिलेगा, कॉस्टिंग मिलेगा और बिजनेस लॉ मिलेगा और बिजनेस स्टडी मिलेगा और बैंकिंग मिलेगा। ओके, बैंकिंग मिलेगा। ऐसे ही 10 चैप्टर से और प्रीवियस क्वेश्चन भी वहाँ पर कुछ है जो कि आपको वहाँ पर डिटेल मिलेगा। और क्या है जो कि कॉस्टिंग, बिजनेस एनवायरनमेंट, अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, बिजनेस, बीआरएफ, बैंकिंग एंड लॉ हो गया, ये सब कुछ आपको देखने 10 यूनिट्स है उसमें। ओके, थैंक यू, जय जगन्नाथ।